All right, guys. So we begin with economic, business, and commercial laws. And in EBCL, we are going to begin with part B, which is for 25 marks. In next 15 days, we will finish this 25 mark portion. And हमारी कोशिश होगी कि ये पूरे 25 नंबर के पोर्शन पे हमारा कब्जा हो जाए. Okay, so let's get started. Let's begin with competition law and regulation. The major sections which are there are 3, 4, 5, 6. But apart from that, we are going to see a lot of other sections as well. We will not leave anything in this portion since there is no choice, there is no option. In the part B portion, there is no option at all. You will have to attempt all the questions. So what we will do is we will finish everything that has been given in the module, plus we will do certain extra things. In competition law, you can completely bank on what I say. I specialize in the subject. I also did one of the courses which is considered as very good in India, which is advanced module on competition law and regulation with a specialization on interface between competition law and intellectual property rights. I was fortunate that for 6 months I was impaneled as a resource person for Maharashtra and Chhattisgarh, and I was impaneled in Competition Commission of India, which is the nodal body in India which regulates competition. So what has happened is, even post that, I've been speaking before various associations, various industry associations, various stakeholders, and the engagement and the discussions with a lot of participants has given me a lot of insight about what is actually happening in the industry and how this law has changed few things. So let's get started. दो तीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. एक तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है इसमें इंडस्ट्री का इंसाइट होना बहुत जरूरी है. तो अपार्ट फ्रॉम लॉ के साथ साथ हर पर्टिकुलर सबसेक्शन और हर पर्टिकुलर सेक्शन पे कोई ना कोई केसेस है. So we are going to see a lot of cases, and we will try and understand how the commission, or better known as Competition Commission of India, how it has changed the game in India. Let's get started. Today is the first session in competition law. Trust me, you will have great time. आपको बहुत मजा आएगी इसमें. And again, अगर भूल चूक पहले से ही माफ, मतलब because I have spoken before the population जो सेशन के बीच में बहुत बड़ी बड़ी गालियां भी दे देते थे, एंड आई हैव स्पोकन बिफोर द मोस्ट एलीट क्राउड. सो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, आई विल यूज व्हाटएवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. प्लीज पार्डन मी बिफोर दैट. सो आई हैव रिडीम्ड माई सेल्फ ऑलरेडी. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट 15 days वी आर गोइंग टू कैप्चर दीज 25 मार्क्स. सबसे पहले तो यार, बिफोर वी स्टार्ट विद कॉम्पिटिशन लॉ, बिफोर वी स्टार्ट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 which came into effect in 2009, let's get started. Let's get clarity on a lot of things which will matter. तो सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में आज की डेट में anything that has to do with competition is regulated by Competition Act 2002. Competition Act 2002 ही हिंदुस्तान में प्रतिस्पर्धा competition को गवर्न करती है. Any matter that is related with it is governed under Competition Act 2002. Secondly, now before in fact we talk about anything, let's discuss this term competition. हम यार पूरे दुनिया की बातें करना शुरू करें उसके पहले मुझे लगता है सबसे पहले let's try and understand what is the meaning of this expression competition. What is the impact of competition? How it can completely change the game, है ना? तो सबसे पहले देसी बात करते हैं, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ, आपको मैं उतना ऊपर ले जाऊंगा जितना तुम्हारी औकात है, उससे भी ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन शुरू जमीन के भी नीचे से शुरू करेंगे हम, ठीक है? 25 मार्क पे कब्जा करना ये हमारा मकसद है, हम दोनों का कॉमन मकसद है, ठीक है? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, हम दोनों मिलके सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बट हाँ, सबसे पहले let's discuss this expression competition. Now what is the importance of competition? क्या कहते हो? Naturally ये जो पूरा competition law है, पूरा competition act है, competition act itself ये आता ही economics के phenomenon से है ना? तो let's try and understand कि ये सब का exact meaning क्या है ना? क्या advantages हैं competition के कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को, पूरे सिस्टमिक एडवांटेजेस क्या क्या हैं, पूरे कंट्री के,
पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, है ना। फिर हम आएंगे कंपटीशन लॉ में, फिर आएंगे अंदर अंदर की बातें करेंगे। अभी पहले तो तुम सोचो व्हाट इज द रेलेवेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कंपटीशन का। तुम सोचो, तुम्हें क्या लगता है कंपटीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ओवर 35 बैचेस आई हैव टेकन एंड ऑल द बैचेस व्हेनेवर वी डिस्कस, तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार मुझे एक काम करो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये वर्ड का रेलेवेंस क्या है, तुम्हारे हिसाब से ये शब्द का रेलेवेंस क्या है, ठीक है। तो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वन लेट्स ट्राई एंड नोट डाउन द पॉइंट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन। क्योंकि तुम सोचते वक्त स्कोप को रिड्यूस कर दोगे, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल देता हूं कि सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स, बेटर वर्ड वुड बी कंज्यूमर्स नॉट कस्टमर्स हियर। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स के लिए क्या एडवांटेज है, थोड़ा बड़ा सोचिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस incurred by the phenomenon of competition to the consumers, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को कंपटीशन के क्या क्या फायदे मिले। सो यार जब भी हम लोग क्लास में होते हैं यूजुअली आई आस्क कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंपटीशन, कंज्यूमर्स को कंपटीशन का फायदा कैसे मिलता है। तो सबसे पहले तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सर लो प्राइसेस, क्योंकि टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर कंपटीशन होगी तो जितने भी सेलर्स होंगे वो अपने दाम गिरा देंगे, कंपटीशन में प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो गुड्स और सर्विसेज शायद थोड़ा कम प्राइस में अवेलेबल होंगे। यस। सेकेंडली, now naturally two sellers are going to fight for the consumer or for the customer. Naturally सिर्फ प्राइस कम करने से काम होगा नहीं, क्योंकि ठीक है अगर कोई बेसिक चीज है, कोई ब्रांडेड चीज नहीं है, कोई बेसिक ही चीज है जो बहुत ज्यादा काम की नहीं, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो उसमें ठीक है आप कम प्राइस पे भी जीत लोगे। बट मुझे एक बात बताओ, क्या सीए के सीएस के स्टूडेंट्स जब वो लोग क्लासेस लगाएंगे तो क्या वो लोग सिर्फ प्राइस देखेंगे? नेचुरली दे विल सी व्हाट, द क्वालिटी ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं कंपटीशन में बेहतर क्वालिटी देने की भी कोशिश की जाएगी। सो नंबर वन एडवांटेज of the competition is naturally the competitors are going to fight and they're going to reduce the price so as to make their product more worth the उसका प्राइस वर्थ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। yes no। secondly, ठीक है सही बात है सर, क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्राइस कम कितना भी कर लो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्वालिटी पे भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट कॉम्पीट ऑन द प्राइस because there's a limit to it. You cannot go beyond below the certain level. आप आफ्टर दैट तो आपको क्वालिटी पे खेलना पड़ेगा, आफ्टर दैट तो आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। सो सर्टनली कंज्यूमर को जीतने के लिए मुझे एज अ सेलर प्राइस घटाना पड़ सकता है, तो मैं कुछ भी करूं एज अ बिजनेस एज अ सेलर, बट कंज्यूमर का तो फायदा है, उसको तो चीजें कम प्राइस में अवेलेबल हो रही हैं। सेकेंडली अगर मुझे और नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। यस और नो? क्या सिर्फ प्राइस घटाने से और सिर्फ क्वालिटी इंक्रीज करने से भी पूरा काम हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन हाँ फंडामेंटली ये तो पक्का होगी। शायद हम कंज्यूमर्स को और समझने की कोशिश करेंगे, शायद हम कंज्यूमर्स के बारे में थोड़ी और चिंतन करेंगे, थोड़ा और रिसर्च करेंगे, और शायद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि और किस किस प्रकार की डिमांड है, और थोड़ी कस्टमाइजेशन भी हम लोग कंज्यूमर्स के लिए करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी हिंदुस्तान के सेलर्स होंगे वो लोग ठीक है, अगर आपस में राइवल्स हैं, अगर 4 कार कंपनीज हैं, सबको अपना हैचबैक बेचना है, सबको अपना एसयूवी बेचना है, ठीक है वो प्राइस पे कॉम्पीट करेंगे, प्राइस को घटा देंगे, क्वालिटी में भी इंक्रीज करेंगे, क्वालिटी, सर्विस स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब इंक्रीज कर देंगे। साथ ही साथ अभी भी मुझे दिल जीतना है, अभी भी मुझे कंज्यूमर जीतना है। एट द एंड ऑफ द डे यार पता है फंडे ना बहुत ही मैथमेटिकल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना बिजनेस में हम लोग बहुत ही मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, इतना प्रॉफिट कमाना है, इतने कंज्यूमर चाहिए। यार फंडामेंटली तो होता है आपको फंडामेंटली कंज्यूमर का दिल जीतना है, और दिल जीतने के लिए आपको उसके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा चीजों को। यस और नो? तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हाट विल हैपन हियर इज धीरे धीरे करके
एज थिंक फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको चॉइसेस मिलने लग जाएंगी, आपके पास चॉइसेस भी होगी। बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट को, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में एक ही सेलर है बेचने वाला, दूसरे सेलर्स है ही नहीं, तो चॉइस है ही नहीं। कंपटीशन है तो फंडामेंटली आपके पास चॉइस तो ऑलरेडी है। और होता क्या है ना, ये जो राइवलरी होती है नो, अलग अलग कंपनीज के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो राइवलरी होती है, ये राइवलरी की वजह से उनको अपनी एफिशिएंसीज बढ़ानी पड़ती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार, तलवार भालों का युद्ध तो बचा ही नहीं है। अब तो ये जो युद्ध चल रहा है, अब जो बिजनेस में जो वॉर चलती है, वो तो है क्वालिटी की, वो तो है राइट प्राइस की। तो आपकी एज अ बिजनेस जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी, जितने कम दाम में आप दे पाओगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना कंज्यूमर आपके पास आएगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो डिमांड्स है, उनकी जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने की भी कोशिश होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मारुति की एक गाड़ी में 12 वेरिएंट आ रहे हैं यार। पावर विंडो, पीछे वाली 2 सीट में पावर विंडो नहीं चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन है चारों में पावर विंडो, एक में पीछे वाली भी सीट में पावर विंडो नहीं है, एक में पावर विंडो है ही नहीं, एक में आपको मैगव्हील लगा के मिल रहे हैं, एक में बिना मैगव्हील के मिल रहे हैं, एक में आपको सनरूफ मिल रहा है, एक में सनरूफ नहीं मिल रहा। क्यों है ये सब? बिकॉज आपको जीतने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मारुति है, मारुति क्या कर रही है? ये क्या कोशिश है? मारुति फंडामेंटली इज ट्राइंग टू विन द कंज्यूमर, राइट? नाउ फंडामेंटली द कंज्यूमर हैज टू बी, अगर कंज्यूमर का दिल जीतना है तो आपको उसको ज्यादा वेरिएंट्स देने पड़ेंगे। अब मारुति देगी तो स्कोडा भी आएगी, स्कोडा भी देगी, hyundai भी आएगी। हर कार की कंपनी फंडामेंटली क्या करेगी? और कंज्यूमर की जो नीड्स है, जो इनहेरेंट डिमांड है, जो इनहेरेंट चीज चाहिए, कंज्यूमर का जो दिल में एक दर्द था, वो दर्द को आपको पकड़ना पड़ेगा, वो दर्द को समझना पड़ेगा, वो दर्द को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हाट विल हैपन इज, टू अ ग्रेट एक्सटेंट बेसिक फायदे कंज्यूमर्स को ये सारे होंगे। सो प्रोबेबली आप कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी के गुड्स, बेहतर क्वालिटी के सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, बिकॉज ऑफ बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो आपके पास चॉइस भी होगी, है ना? Let's try and understand this with the help of example. So let's come to the example. What happened 2016, 2017? What happened? Now Reliance Industries, through its subsidiary Reliance Infocom or Jio Infocom, it came up with the telecom services. Now मुकेश अंबानी ने 2016-17 में क्या किया? इंटरनेट स्पीड देना स्टार्ट कर दिया, है ना? स्पीड अच्छी देने लग गए, कम प्राइस पे डेटा देने लग गए। What has happened after that? Bharti Airtel, it has been an industry leader in India. अभी तक क्यों नहीं वो लोग सर्विस स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे थे? अब क्यों अचानक से भारती एयरटेल को गेम में आना पड़ गया है? वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया है, वो लोग भी अब कॉम्पीट करने लग गए हैं, वो लोग मिलकर अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्विस दो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार, ये बिजनेस स्कूल्स में ना कभी कभी हम लोग बहुत ही सुपरफिशियल बात कर रहे होते हैं, ये मार्केटिंग टेक्निक, वो मार्केटिंग टेक्निक। अबे काय की मार्केटिंग टेक्निक? फंडामेंटली कंज्यूमर की डिमांड है, फंडामेंटली कंज्यूमर को जो चाहिए वो सब दो ना। क्या मार्केटिंग? कोई मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप कंज्यूमर को वो सब दे रहे हो जो उसको चाहिए, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जियो आया, व्हाट हैपेंड? भारतीय एयरटेल ने रेट बढ़ा दिया। बीएसएनएल ने, चेक आउट द इमेज, बीएसएनएल रिड्यूस्ड इट्स प्राइस 70%। सो एक बात तो जो हम लोग कर रहे हैं वो तो सिद्ध भी हो रही है कि दाम तो घटते हैं बस। सेकेंडली, आप मुझे बताओ, अपने मॉम डैड से, अपने एल्डर सिबलिंग से पूछो, क्या उनके इंटरनेट बिल्स घटे नहीं है? क्या उनके फोन बिल्स घटे नहीं है? 100% बता रहा हूं कि फोन बिल घटे हैं, प्राइसेस कम हुए, रिलायंस क्या है। एक कॉम्प्यूटर, एक टेलीकॉम मार्केट में नया कॉम्प्यूटर का क्या हुआ देखो, भाव घट गए लोगों के। फर्दर इंटरनेट स्पीड, कहां हम यूट्यूब में वीडियो बफर कर करके देखने के आदि हिंदुस्तानी लोगों से दर्द पूछो आप। 1990 में जो पैदा हुए हैं, 80s में पैदा हुए हैं, उनको दर्द पूछो। यूट्यूब का एक वीडियो देखने में भैया आधा दिन चले जाता था, इतना बफरिंग होती थी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड नाउ? 5G जी, मैं तो क्लास लेता हूं, 5G लगा हुआ है। 5G है जी, उसमें 250 बच्चों की लिमिट होती है, 100-125 बच्चे ज्वाइन करते हैं, कोई टेंशन ही नहीं आती। वी आर टॉकिंग 5G। रिलायंस की वोल्टी जो भी उनकी वोल्टी टेक्नोलॉजी लेकर आए वो लोग, हुआ क्या? कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में डेटा स्पीड, इंटरनेट स्पीड बेहतर हो गई है, वो भी कम प्राइस पे। दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यू प्लेयर इन द मार्केट। सिर्फ एक नया प्लेयर मार्केट में आया, देखो क्या कंपटीशन इंक्रीज हुई। तो एज एन उपभोक्ता मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना?
Now, thirdly, earlier, frankly speaking, we had very few choices, यार. मतलब कोई सर्कल्स में तो भारती एयरटेल के अलावा ऑप्शन नहीं होता था. अब कोई बेचारा रूरल में है तो BSNL के अलावा ऑप्शन नहीं होता था. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, सब लोग अपना अपना रेंज बढ़ाए हैं, स्पेक्ट्रम ज़्यादा खरीदे हैं, सब लोग अपना अपना नेटवर्क सर्कल बढ़ाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं. तो अब चॉइसेस भी है कंज्यूमर के पास, है ना. और भारत सरकार भी, देखो इसमें आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा. भारत सरकार ने भी हर बार क्या होता था, जो एक बार फोन नंबर ले लिया, वो फोन नंबर लेने के बाद हम उसको बदल नहीं सकते थे. तो कंपटीशन का फिनोमिनन तो यहां रहेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर फोन नंबर बदलना पड़ जाए दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने के लिए, अगर मुझे मेरा फोन नंबर बदलना लग जाए, फोन नंबर मुझे बदलना पड़ जाए, तो मैं फंस रहा हूं किसी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास. मोबाइल पोर्टेबिलिटी आ गई. आज की डेट में क्या है, कंपटीशन है बॉस. जियो अच्छी सर्विस देगा, लोग जियो के पास जाएंगे. जियो अच्छी सर्विस नहीं देगा, 2 मिनट के अंदर भारतीय एयरटेल में चले जाएंगे लोग. भारतीय एयरटेल जियो दोनों नहीं देंगे, 2 मिनट के अंदर हुई. आप समझ रहे हो मेरी बात. तो ये जो पोर्टेबिलिटी है, ये पोर्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़े दिन में. मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम में भी ये पोर्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद. 100% ऐसा होगा. शायद ये वीडियो यूट्यूब में हमेशा रह जाए, यूट्यूब तुम्हारे दिल में हमेशा रह जाए. 3 साल बाद, 4 साल बाद 100% ये होगा कि अगर आपने किसी एक बैंक से होम लोन लिया है, अगर आप उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, प्रोसेसिंग वगैरह हटा देगी. आप इमेजिन करो, 50 लाख का आपका लोन अकाउंट HDFC में है, आपको मन कर रहा है वो HDFC से सर्विस नहीं मिल रही है, एक बटन दबाने पे आपका पूरा खेला एक्सेस में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. द डे दिस विल हैपन, थिंग्स विल चेंज. इनफैक्ट ये पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम में जो बर्बादियां हुई है, पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम में रिसोर्सेज की पूरी बर्बादी हुई है. फंडामेंटली सारी बैंक्स को अलग अलग ATM बनाने की जरूरत थी ही नहीं. फंडामेंटली ATM मशीन जो है वो एक ही हो सकती थी. ये हमारे हिंदुस्तान के बैंक कुछ बड़े बड़े बैंकों को ये लगा कि ये रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो गड़बड़ होगी. फंडामेंटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जरूर सुनोगे बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी. जो बेहतर सेवा देगा, जो बेहतर सर्विसेज देगा, लोग उसके पास टिक करेंगे, जो नहीं देगा उसको छोड़ देंगे. सो कंपटीशन का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, हर चीज में एफिशिएंसी के साथ बिजनेस में ऑपरेट कर रहा होगा, वही बिजनेस में रह जाएगा, वही बिजनेस में फ्लरिश कर जाएगा. इसके अलावा बाकी सारे लोग they'll be wiped out from the market, उनको छोड़ना पड़ जाएगा बाजार. तो कहीं ना कहीं एज एन उपभोक्ता मुझे तो फायदा होता है, हाँ या ना. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. 2009 2010 सैमसंग, एप्पल, जो बड़े स्क्रीन के फोन्स थे, उसमें इन दोनों के अलावा कोई था क्या? नहीं. तो फंडामेंटली 2009 2010, इनफैक्ट 2011 also, people were, they either had to buy Apple or Samsung. Now what has happened? Post 2014, post 2015, Lava, Choco, Lava, whatever it is, Liva, Vivo, Lava, Wawa, etc. So many phone options. Now the competition is wider, right? So what happens is to a great extent consumers को तो पक्का फायदा होगा ही होगा. अब देखो, इंटरनेट की सर्विस फ्री हुई है तो इसका इम्पैक्ट एजुकेशन में भी आया है. आज अगर कोई लोकल टीचर था, कोई एक सिटी में पढ़ा रहा था, वो 4 दीवारी के अंदर कुछ भी बोल देता था, कुछ पता नहीं चलता था किसी को. अब क्या हो गया है भैया, पूरे हिंदुस्तान में लोग सुन रहे हैं. अब पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से आप लोग आके बात करोगे. जो अच्छे टीचर होंगे, जो अच्छे क्रिएटिव टीचर होंगे, अब वो चाहे मैं नागपुर में बैठ के पढ़ाऊं तो मेरे पास राजस्थान का भी स्टूडेंट है, तमिलनाडु का भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, गुजरात से स्टूडेंट आए हुए हैं यार. अभी 3-4 लॉ कॉलेज वाले बच्चे बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं. अभी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वाले बहुत सारे बच्चे हैं. अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तो मुंबई में है, शायद वो मुझसे कभी पढ़ने नागपुर थोड़ी आते. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इवन दे आर इंक्वायरिंग फॉर सेवी लेक्चर्स, फॉर EBCL लेक्चर्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब डेटा सस्ता होने की वजह से जो हम जैसे भी लोग हैं, जो क्रिएटर्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो एजुकेशन में हैं, हम लोगों के पास भी एक्सेस है वाइडर ऑडियंस का, और उन लोगों के पास पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स का एक्सेस हो गया है, हाँ या ना. तो टीचर्स के लिए भी अगर आप बात करोगे तो आज टीचिंग में भी आप बात करो, द रीजन यू हैव एडवांटेज इज बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन. बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इसकी वजह से सबसे कम प्राइस में ना हमने कितनी सारी चीजें वाइप आउट कर दी. पेन ड्राइव का कॉस्ट है, पेन ड्राइव को भेजने का लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, ये सब हट गया. हम तो आपको बोल रहे ना एप्लीकेशन में रजिस्टर करो, सीधा चालू कर दो, है ना.
तो हमने भी बहुत काम किया। क्यों? क्योंकि प्राइसेस भी कम रखने। आप प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव नो आइडिया व्हाट इट टेक्स टू कम अप विद अ 4K लेक्चर। माय इंटायर इकोसिस्टम इज 4K. व्हाई आई एम कमिंग अप विद 4K लेक्चर? One, of course I like it, of course I like, you know, to be on the top of any top of the game, मुझे रहना पसंद है। But fundamentally भाई at this moment 4K is the, मतलब टॉप ऑफ द लैडर में 4K ही है। जिस दिन अब मैं 8K और 6K की भी तैयारी रखा हूँ, सबसे पहले वो भी हम ही करेंगे। तो हम 4K क्यों कर रहे हैं? टॉप नॉच क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस, ऑलमोस्ट द प्राइसेस आर वेरी 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 लेस. You have no idea at what margins we will be operating in future, because we are also looking at scale. ठीक है, हिंदुस्तान में 10,000 बच्चा अगर लेक्चर लेने वाला है, वो परचेज करने वाला है, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमें प्राइस कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी एफिशिएंसीज बढ़ रही है ना। कंटेंट ठीक है, मतलब मैं तो थोड़ा पैशनेट हूं, तो मेरा कंटेंट टॉप ऑफ द गेम मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब तो मुझे और गेम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा कंपटीशन हिंदुस्तान के 2-3 टीचरों से नहीं है, अभी नागपुर के 2-3 टीचरों से नहीं है। नागपुर में तो कोई थे भी नहीं ज्यादा, लेकिन अब फंडामेंटली पूरा देश अपने लिए कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे एज अ टीचर मुझे गेम में रहना है, तो मुझे टॉप नॉच क्वालिटी एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे देना पड़ेगा। प्लस आई विल हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बी इन द गेम। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ कंज्यूमर तुम्हें क्या मिला? चॉइस। अब आप अमरावती में हो, आप हो खापरखेड़ा में, आप हो असम में, आप हो नेल्लूर में, आप हो जोलारपेटाई में, आप हो बनारस में, मेरठ में, आपने क्या करना है जी? आपने देखना है सारे लोगों के लेक्चर्स, आपको जो पसंद आएगा आप उसका परचेज करोगे, और मैट्रिक्स पे कंपेयर तो करोगे ना आप, किसकी क्वालिटी कैसी है, किसका प्राइस कैसा है, टीचर का एक्सपीरियंस कैसा है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, इंडस्ट्री का नॉलेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज अ कंज्यूमर एट दिस मोमेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज? थिंग्स आर कमिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस with the increased product quality or the service standards, and to a great extent now everybody is trying to understand you a little more, है ना? क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल दर्द, तुम्हारा एक्चुअल पेन एरियाज कौन सा है, अगर वो समझ आ जाए तो हम भी कोशिश करेंगे कि यार हम उसको एड्रेस कर दें, है ना? तो these are the 3 advantages that the consumers get. Now कंपटीशन का फायदा कंज्यूमर को क्या होता है? ये सबसे बेसिक लेवल की चीज है, ये बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, लेकिन असली गेम इसके ऊपर है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंपटीशन टू द बिजनेसेस, है ना? सो लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द एडवांटेजेस टू द फर्म्स, टू द बिजनेसेस। धंधे में इसका क्या बेनिफिट है? तो जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मार्केट प्लेस पे ऑपरेट कर रही है, उनको क्या फायदा है? लेट मी गिव यू द कन्वेंशनल एग्जाम। अभी देख, मैं बकर में मैं आया नहीं हूं, और मैं एकदम टॉप नॉच एग्जाम्पल भी मैं अभी तक दिया नहीं हूं, बट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वन थिंग। देख, कन्वेंशनल स्टडी बोलता है जापान, पूरे वर्ल्ड में जापान किस में आगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि जापान के अंदर ही इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग, इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च करती है, कि उनके आपस के ही कंपटीशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में आज जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आ गया है, राइट? नो, नेचुरली वी हैव टॉक्ड अबाउट ईस्ट, लेट्स गो टू द वेस्ट। यूएसए का बात करते हैं। व्हाई? अब आप देखो, पूरे यूएस में क्या कल्चर है? गूगल, एप्पल, ओरेकल, जितनी टेक कंपनीज है, जितनी इनोवेशन वाली, फेसबुक, जितनी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, ये सारी यूएस में क्यों है? बिकॉज वहां पे ये इकोसिस्टम है, वहां पे कंपटीशन हमेशा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेशन में, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, मेकिंग द वर्ल्ड वन प्लेस, इसमें ज्यादा रहा शुरू से, राइट? माइक्रोसॉफ्ट और या एप्पल दोनों वहीं के ही हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस कहाँ आगे हो गया? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। नाउ इंडिया कहाँ ज्यादा आगे है? आज तुम साउथ अफ्रीका में जाओगे, डॉक्टर अंजन रेड्डी के पुतले लगे हुए हैं, स्टैच्यूज हैं उनके। क्यों? जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया के अंदर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में इतना कंपटीशन रहा है
कि हिंदुस्तान में अंदर ही सर्वाइव करने के लिए लोगों ने इतनी एफिशिएंसीज बढ़ा दी कि पूरे वर्ल्ड में अब हम फार्मास्यूटिकल्स में, एटलीस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग बहुत आगे आ गए। तो हिंदुस्तान वहां ज्यादा आगे हो रहा है, राइट? सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जिस चीज में कंपटीशन होगी वहां फर्म्स को भी एक दूसरे से कॉम्पीट करना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए मेरी बात को। 2 मिनट फोकस करिए आप, और एकदम लेजिट बात कर रहे हैं हम लोग। कोई हवाई महल तो मेरे को बनाना ही नहीं है वैसे भी, और मुझे पता है मुझे इधर उधर की बात क्यों नहीं करनी। इतना सेक्सी कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है कि मेरी सबसे पहली कोशिश तो यह है कि मैं आपको 15 दिन में पूरा कंटेंट दे दूं 25 मार्क का रैप करके। वरना मैं तो someday I will show you what books I'm using for competition law। मेरे पास तो इतना खजाना है यार। मैं तो जो कोर्स किया, मुझे तो यूरोप, यूएस, कनाडा, ब्राजील सारे जुरिस्डिक्शन में कंपटीशन लॉ में क्या होता है मुझे तो पता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जितना कॉम्पैक्ट करके बेहतरीन से उसका सार निकाल के दे दूं, उसका निचोड़ पूरा एक जगह पे दे दूं, वो आपके लिए फायदे वाला है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। नाउ से सपोज 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है? 2 टीवी की दुकानें हैं। फर्ज करो कि आप एक टीवी लेने जा रहे हो। थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट है। आप टीवी लेने जा रहे हो। आप जब टीवी लेने गए तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 2 कंपनीज हैं, 2 शोरूम्स हैं, 2 फर्म्स हैं। आप जब टीवी लेने गए आपने देखा कि एक ही जगह पे 2 शोरूम्स हैं। Now, as a consumer, what is your what is the first reaction? You will be very happy. क्यों पता है? क्योंकि आप दोनों शोरूम में जाओगे, दोनों शोरूम से प्राइसेस पूछोगे, सब कुछ करोगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन हियर कि एज अ कंज्यूमर पहले तो आप खुश हो कि यार चल बढ़िया, 2 ऑप्शंस हैं अपने पास। अब एक कंज्यूमर क्या करेगा? आप इसके पास भी जाओगे, इसके पास भी जाओगे ना। सपोज मान लो आपको एक टीवी पसंद आ गया, ठीक है? आपको 50,000 रुपए का एक टीवी पसंद आ गया। अब वो टीवी यहां भी अवेलेबल है, वो टीवी यहां भी अवेलेबल है। अरे भाई, एक ही जगह में खड़ा हूं, यहां मेरे सामने 2 दुकानें, 2 शोरूम्स है, यहां भी टीवी अवेलेबल है, यहां भी टीवी अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा? आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल, नो नॉट मी, नॉट यू, बट एक जेनेरिक कंज्यूमर क्या करेगा? सबसे पहले ही विल आस्क फॉर द कॉस्ट। क्योंकि अगर मैं, मतलब ठीक है, अगर मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए फिर भी यार मेहनत का पैसा है तो क्यों नहीं हम सोचेंगे ना बचाने का। तो पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट। अब दोनों में सबसे पहला कंपैरिजन कहाँ आएगा? अरे यार, आप 51,000 में दे रहे हो, वो तो 50 में ही दे रहा है। तो स्ट्रेट अवे ऑप्शन क्या है? बी से ले लेंगे, है ना? सो स्ट्रेट अवे ऑप्शन है, हम 20 से ले लेंगे। लेकिन ए अपने को छोड़ेगा क्या इतना इजीली? एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वॉर। एट द एंड ऑफ द डे, सी मे बी आज मैं और आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज ऑलमोस्ट अ वॉर। मे बी यू डोंट सी लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू डोंट सी लॉट ऑफ गन्स, यू डोंट सी द, उतना आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसे दिखता नहीं कि धमाके हो रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वॉर। नाउ when this is a war, naturally ए के पास, ए भी बोलेगा ठीक है, आई विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस। मे बी ए अपना प्रॉफिट मार्जिन घटा देगा और ए भी बोलेगा ठीक है, आई विल ऑल्सो ऑफर यू एट 50,000। चल ठीक है, अब ए अगर 50 का दे रहा है तो आप बी को बोलोगे यार 50,000 में तो वो भी दे रहा है, तो बी बोलेगा एक काम करो, मैं 47 में दूंगा। फिर आप, मतलब अब तो आपको मजा भी आ रही है, आप इसके पास भी जाओगे, इसको भी क्या बोलोगे? यार वो तो 47 में दे रहा है, आप 47 में दोगे क्या? तो ए, मान लो अब दोनों, ए और बी दोनों ने 50,000, 51,000 से दाम 47 पे अटका दिया। चल अब बोल, एज अ कंज्यूमर अब क्या तुम करोगे? एज अ कंज्यूमर यू हैव 2 शोरूम्स, इक्वली गुड, सब कुछ ठीक है, तुमने प्राइस पे कॉम्पीट किया, 51, 50, 49, 48, 47, दोनों आकर बोलती कि ठीक है हमारा फाइनल प्राइस है 47,000, राइट? नाउ एज अ कंज्यूमर, अब देख आप कम तो हो नहीं। लोग कहते कंज्यूमर इज किंग, मैं कहता हूं कंज्यूमर किंग नहीं है, कंज्यूमर इज गॉड। कंज्यूमर इज फकिंग भगवान है कंज्यूमर आज की डेट में। तो किंग विंग के तो पुराने जमाने हो गए, तो कंज्यूमर वापस आएगा। कंज्यूमर अब दोनों आएगा तो ऐसे खड़ा रहेगा 47, 47, मुझे टीवी चाहिए, अब भी चाहिए, ये 47,000 कैश।
अब ए और बी क्या कर सकते हैं, प्राइस तो घटा दिया। शायद ए अपना मुंह खोलेगा और ए बोलेगा कि ठीक है सर, प्रोडक्ट की वारंटी थी 2 साल की, मेरे तरफ से 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी, तीसरे साल को टीवी को कुछ हो गया मैं हूं फिर। बी शायद हो सकता है बी भी बोले कि मेरी तरफ से भी 3rd ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी, पॉसिबल। अब देखो यानी एज अ कंज्यूमर आपने प्राइस तो जीता ही, प्राइस तो आपने कम करवाया ही करवाया, शायद आपको बेहतर सर्विस मिल गई, 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई, यस। अब फिर वही डायलेमा, आप बोलोगे यार ये तो दोनों मिल रहे हैं। फिर शायद ए या बी में से आपको कोई दूसरा भी एक ऑफर देगा कि ठीक है ये वाला प्रोडक्ट अगर आप मुझसे लोगे तो वट एवर नेक्स्ट प्रोडक्ट यू विल बाय उस पर भी मैं डिस्काउंट दे दूंगा, या वो बोलेगा ठीक है मैं टीवी का स्टैंड फ्री दे दूंगा, या दूसरा बोलेगा कि मैं आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर फ्री दे दूंगा। नाउ सी द गेम इज इंक्रीजिंग, है ना। एकदम देसी एग्जांपल है, ये दे एग्जांपल देते वक्त मेरे को शर्म भी आती है, एकदम देसी एग्जांपल है। मैं जो जिसका बात आज के एंड सेशन में होगा वो से बहुत देसी देसी बात चल रही है। तो शायद फिर ऐसे वॉर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, दोनों शोरूम में से कोई भी अपना कपड़ा उतार के तो देगा नहीं ना आपको, देयर इज अ लिमिट टू थिंग्स। फिर ए और बी को अब तुम खा ही जाओगे तो वो क्या बोलेंगे, भैया इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिर ठीक है तुम भी देखोगे, अब इन दोनों में से शायद किसी ने अपना शोरूम अच्छा बनाया होगा, तो शायद इन दोनों में से कोई एक टीवी के सामने अपना एक काउच रखे, हाँ वहाँ एसी लगाए, एम्बियंट लाइटिंग रखे, स्पीकर्स चालू करे, वो आपको बोलेगा आप देखो तो सी बैठ के। तो इन दोनों में से शायद एक बहुत अच्छा शोरूम बनाएगा, बहुत अच्छा काउच बनाएगा, काउच में पूरा आपको एक्सपीरियंस देगा, है ना। जब आप वहाँ बैठोगे तो आपको चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफी या कोकोनट वाटर, ही ऑफर यू वेरियस थिंग्स जस्ट टू विन योर हार्ट, है ना। अब इन दोनों में से कोई एक का दिमाग यहां भी चलेगा कि ठीक है नाउ लेट मी रेज द गेम, लेट मी इंक्रीज द सर्विस क्वालिटी। मान लो दोनों ने ये भी कर ली, अब इसके बाद तो कोई लिमिट है ना, ये सब अगर ये दोनों कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो ठीक है 1 2 3 5 50 100 500 कंज्यूमर्स का यही बिहेवियर देखेंगे तो ये दोनों टीवी वाले क्या करेंगे, ये दोनों शोरूम वाले डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे कि भाई ये चाइना हो या कोरिया, साउथ कोरिया के सैमसंग वाले आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, अरे भाई कंज्यूमर को और प्राइस कम चाहिए, हम तुम्हारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटर भी बेच पा रहा है तो हमारी एज नहीं है। तो अपन डिस्ट्रीब्यूटर से बार्गेनिंग करेंगे, अपन डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि दाम घटा। हम शायद डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि मैं तेरे से 500 टीवी उठाऊंगा, रेट घटा। क्योंकि अगर मैं 500 टीवी उठाता तो शायद मेरे को 3-4% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, शायद वो 3-4% से मैं गेम खेल लूं, है ना। इसका मतलब ये कंज्यूमर के साथ जो हमारा चल रहा था, अब कंज्यूमर को जीतने के लिए हम हमारे भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, ठीक है व्हाट इज द मोर यू कैन डू फॉर अस। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को निचोड़ेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से बार्गेनिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान करेंगे, उससे क्रेडिट मांगेंगे, उसको और हम लोग बार्गेन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो जाएगा अपने कंपनी में और वो कंपनी को बोलेगा ओ भाई मेरे को सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे लिए कुछ करो। अब अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और डिस्काउंट देगी और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और फायदा पहुंचाएगी, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग में फोकस होगा तो एक टीवी में अगर 250 पार्ट लगने वाले होंगे तो जितने के जितने 250 के 250 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे, मैं 250 के 250 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा कि भाई दाम घटाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, कोई एक्स्ट्रा फीचर लाओ, ये टीवी में एक एडिशनल स्पीकर लाओ, इसकी खास कुछ एक एडिशनल ऐसा पॉइंट बना दो कि लोग प्राइस पे कॉम्पिट। अब क्या होगा, अब इनोवेशन होने लग जाएगी, है ना। क्योंकि अब आपको टीवी को शायद आप टीवी में जो एक्स्ट्रा पार्ट यूज कर रहे थे आप उसको रिड्यूस करोगे ताकि कॉस्ट कम हो, है ना। आप उसी टीवी के अंदर में कोई एडिशनल गेम का कोई फंक्शन दे दोगे, आप उसी को एप्पल से या मैकबुक से या किसी डेस्कटॉप से कनेक्ट करने के लिए आप उसको एज अ मॉनिटर यूज करने का ऑप्शन दे दोगे। नाउ व्हाट विल हैपन इज एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल देयर विल बी इंप्रूवमेंट, है ना। प्लस मैन्युफैक्चरर अपने सारे वर्कर्स को बोलेगा भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, वो सोचेगा अब रोबोटिक्स कहां यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन कहां यूज कर सकते हैं, फास्ट कैसे काम हो, मैं ये जो फैक्ट्री है जहां पे माल बन रहा होगा उसका यूज ज्यादा कैसे करूं। अब वो लोग अपना कॉस्ट घटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर मांग रहा है।
बिकॉज ऑफ दिस इंटायर, इसका जो रिपल इफेक्ट है, आप देखा क्या हुआ, हम कहाँ खड़े थे, दुकान के बाहर खड़े थे, कहाँ चले गए हम, साउथ कोरिया में, चाइना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में चले गए हम लोग, अब भी हम यहाँ थे नागपुर में। आप समझ रहे हो मेरी बात। फिर वो साला मैन्युफैक्चरर क्या, जो जो मशीनें यूज होती होगी मैन्युफैक्चरर, वो मशीन मैन्युफैक्चरर से बोलेगा ये भाई तुम्हारी मशीन में थोड़ा इनोवेशन करो, थोड़ा इनोवेट करो भाई, नई टेक्नोलॉजी लाओ भाई, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, व्हाट इज द एडवांटेज टू द बिजनेस। अरे भाई जो जो राइवल्स भी हैं, ये जो राइवलरी है, ये जो कंपटीशन हो रही है, इसकी वजह से, ये जो कंपटीशन हो रही है, जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की दरकार पड़ रही है, इस वजह से बिजनेस में एफिशिएंसीज इंक्रीज होंगी। यस और नो। मतलब नंबर 1, इनकी एफिशिएंसीज इनको इंक्रीज करनी पड़ेगी, द एफिशिएंसीज विल इंक्रीज। तो जितने भी मार्केट प्लेस में बिजनेसेस हैं, सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबकी एफिशिएंसीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर पूरे रिसोर्सेज का एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे तो वो लोग भी अभी कॉन्शियस हो जाएंगे चीजों को लेके। अरे यस और नो। और जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं वो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे, और जुगाड़ मतलब वन टाइम नहीं, स्ट्रक्चरल जुगाड़, है ना। तो आपको ओवरऑल फ्रूगल इनोवेशन करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना हो सके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दें। तो बिजनेसेस की लेवल पे भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, है ना। शायद जो आपके रिसोर्सेज फालतू पड़े होंगे, आपके फिक्स एसेट फालतू पड़े होंगे, आप बोलोगे यार इसको हटाओ यार, ये पूरी जगह फालतू है यार। आप क्या करोगे, आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो आप अपनी सारी फालतू चीजें हटाना शुरू कर दोगे, ओवरहेड्स को, जितने फालतू के कॉस्ट होंगे उसको सबको रिमूव करने की कोशिश करोगे, है ना। मे बी यू विल ऑल्सो टॉक टू योर बैंकर्स कि अरे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करो यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का भी फायदा हुआ, हाँ या ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये जो राइवलरीज होती हैं, जो कंपटीशन होता है, इसकी वजह से ना सिर्फ उपभोक्ताओं का फायदा होता है, इससे ना सिर्फ कंज्यूमर एट लार्ज को फायदा होता है, बल्कि जो बिजनेसेस हैं, जो सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको भी काफी एडवांटेजेस होते हैं। जीता जाता एग्जाम्पल हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हिंदुस्तान फार्मा में क्यों पूरी दुनिया में आगे होती जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में आपस में इतना कंपटीशन है, हमें यहीं सर्वाइव करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अपन पूरे वर्ल्ड में आगे हो गए, है ना। एंड द thirdly, firstly we have talked about the advantages which are accrued to the consumers. Secondly, we talked about the advantages which are accrued to the businesses per se. Thirdly, let's talk about what are the advantages to the economy as large. अब कंपटीशन के एडवांटेजेस सीधे इकोनॉमी को कैसे होंगे, पूरी इकोनॉमी, पूरा देश कैसे इसका फायदा उठा सकता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड किस तरह से फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। बट बिफोर आई टॉक अबाउट इट, आई विल हैव टू शो यू समथिंग। मुझे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। लेट मी टेक यू टू वन स्लाइड। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट अ रिसर्च which has been conducted by OECD, which is the global cooperative body. एक प्रूफ के साथ एक रिसर्च बॉडी की रिपोर्ट आई थी। मुझे लगता है कि बिफोर स्टार्टिंग कंपटीशन लॉ जरूर हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए, जरूर हमको सबको पढ़ना चाहिए एक बार। लेट्स गो टू दैट रिपोर्ट एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एट द टॉप। इकोनॉमी, पूरे लार्जर इकोनॉमी को क्या एडवांटेज होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो let's talk about the most important thing. What is the advantage to the economy? पूरे हिंदुस्तान को क्या एडवांटेज है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। Now first of all, why it is being said, why do we argue that enemy of the competition is enemy of the country? क्यों बोलते हैं ऐसा? The reason is, and let me thank Dr. M.S. Sahu ji and my professors in School of Competition Law at IICA, from whom this all stuff is coming here.
सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ग्रेटिट्यूड टू ग्रेटिट्यूड टू जिनसे मैंने पढ़ा है, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है. अब डॉक्टर एम एस साहू का एक स्पीच मैंने सुना था, उसमें उन्होंने ये कहा था. और फिर ऑफ कोर्स आई रिसर्च अ लिटिल बिट, आई डेल्व डीपर इनटू द सब्जेक्ट, एंड इवेंचुअली व्हेन आई सॉ मोर थिंग्स आई एक्चुअली केम टू नो अबाउट दिस. नाउ the research report says, and it's the proven research report and by the organization which has quite a lot of reputation in the world. The report says कोई भी इकोनॉमी, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे इंडिया के, कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है ये 3 फैक्टर्स पे. रिसोर्सेस ऑफ दैट कंट्री, कोई भी देश कितना ग्रो करेगा डिपेंड करता है नंबर 1 उस देश के रिसोर्सेस के ऊपर, नंबर 2 उस देश में कंपटीशन कितना है उसके ऊपर. आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट प्लीज. या सो वन इज, कोई भी कंट्री ग्रो करता है 3 रीजन से. फंडामेंटली देयर आर 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है. 1 इज द रिसोर्सेस दैट द कंट्री हैज गॉट. सेकेंडली, उस देश में कंपटीशन कितना है. thirdly, द इनोवेशन. मतलब फंडामेंटली कोई भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ पर से डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ डिपेंड्स. 1 is of course the resources that the country has got. Secondly, the competition which is there in that particular country. Thirdly, innovation. Let me just write it down for all of us here. कोई भी इकोनॉमी की, ये हम ओवरऑल अब ब्रॉडर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. अभी असली किस्सा शुरू हो गया है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एट द फर्स्ट प्लेस. नाउ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ फंडामेंटली किस पे डिपेंड करती है. Fundamentally, the growth of the economy depends on 3 factors. Which are those 3 factors? And again, I am repetitively saying that I am not talking about any random report here. I am talking about a report which was published by OECD, which is a global cooperative body which is well accepted, well received by everybody. Now, the growth of the economy depends on 3 factors. Which are those factors? Number 1 is the resources. Is the resources that the country has got. उस देश के पास जो resources है उस पर डिपेंड करता है कि वो देश, वो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी. दूसरी बात, सेकेंडली, उस देश में कंपटीशन कितना है बिजनेसेस के बीच, सेलर्स के बीच. जितना ज्यादा कंपटीशन होगा देश उतना आगे जाएगा, उस देश की इकोनॉमी उतना ज्यादा आगे जाएगी. थर्डली, ये देखना जरूरी होगा कि उस देश में इनोवेशन कितना है. फंडामेंटली द ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ, एनी इकोनॉमी ग्रोस फंडामेंटली बिकॉज ऑफ 3 reasons. 1 is the resources that the country has got. Second is the sort of competition that exists in that country. Thirdly, the innovation. तो मेरे भाई, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सुन मेरे भाई, तेरी ग्रोथ डिपेंड करती है 3 चीजों पे, 1 2 3, तो आप क्या करोगे ग्रो करने के लिए? वो 3 फैक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करोगे, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर रिलाय करोगे, वो 3 चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करोगे. यस, नो, दैट इज व्हाट यू विल डू, राइट? यही होगी आपकी कोशिश, है ना? अब अगर हिंदुस्तान को ये पता चल चुका है, इंडिया को ये पता है कि भैया हमारे देश की ग्रोथ ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो अब रिसोर्सेज है. हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हिंदुस्तान के बॉर्डर्स में पानी भी है, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स में माउंटेन्स भी है, तो माउंटेन्स में कई सारी हर्ब्स भी हैं, तो हमें बहुत सारे नेचुरल एडवांटेजेस हैं. बट वो तो नेचुरल है. रिसोर्सेज तो जैसे जापान है, वो तो जापान में तो रिसोर्सेज नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉम्ब गिराए गए थे उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ का उनका कोई एडवांटेज नहीं है. दे आर डूइंग वेल बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. अब ये तो, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते जितने रिसोर्सेज हैं, बट भाई ये फैक्टर्स पे तो कंट्रोल भी किया जा सकता है. इसका मतलब भारत सरकार को अगर अपनी इकोनॉमी में
एफिशिएंसीज बढ़ानी है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे. We will have to do something so that the rivalries, the business rivalries, the competition is there. Yes. Third, we will certainly promote innovation because we know that these are the three factors which are certainly going to help us. है ना? तो हमको पता चल जाएगा कि ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान का ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ डिपेंड करता है. तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग ये तीन फैक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें ताकि हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो, है ना. अब आप बताओ, अगर मेरे देश का तरक्की के बीच में कोई आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा क्या? इसीलिए तो कंपटीशन लॉ बनाया गया है. Why the penalties in competition law? Why the penalties have been so harsh? Why we talk about the draconian penalties? क्यों इतनी ज्यादा पेनल्टीज लगी हैं? हम तो बोलते ही नहीं कि सिर्फ पेनल्टी लगी, हम तो बोलते हैं डिटरेंट पेनल्टी. इंडिया में लेट्स टॉक अबाउट पेनल्टीज. DLF 630 crores. Coal India Limited, the penalty levied earlier was 1773 crores. BCCI 52.24 crores. National Stock Exchange 55 crore. 14 कार कंपनी के 2500 करोड़. We talking about deterrent penalties. Why the penalties are so deterrent? इतनी ज्यादा पेनल्टीज क्यों है? क्योंकि मेरे देश में जो प्रतिस्पर्धा कम करने की कोशिश कर रहा है, जो प्रतिस्पर्धा के बीच बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, जो हिंदुस्तान में कंपटीशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर मेरे देश के इस फैक्टर को रिड्यूस करता है तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंपैक्ट करता है. और एक्चुअल में इनोवेशन तो कंपटीशन की वजह से ही होती है. तो कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, कंपटीशन कम होगा तो इनोवेशन भी कम होगा. मतलब मेरी पूरी ग्रोथ ड्राइवर, मेरे इकोनॉमी के पूरे ग्रोथ ड्राइवर पे असर पड़ेगा. और इसीलिए वी से दैट एनीबॉडी हु इज एनिमी ऑफ द कंपटीशन इज एनिमी ऑफ द कंट्री एंड हेंस द पेनल्टीज आर सो ड्रैकोनियन. इतनी डिटरेंट पेनल्टी मारो कि साला एक बार किसी ने गलती की, उसको पेनल्टी पड़े तो जिंदगी भर दोबारा वो कंपटीशन लॉ का उल्लंघन करने के बारे में ना सोचे, है ना. लेट्स delve a little more deeper in the subject. थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को हम और देखेंगे, ठीक है. आ जाओ. Alright, so let's get down and see कि exactly what are the growth drivers. इकोनॉमीज कैसे इंक्रीज होती है, इकोनॉमीज कैसे चलती हैं, कोई भी देश का ग्रोथ, इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप फोकस करोगे 2 मिनट के लिए, तो पहले तो बहुत ज़्यादा ये जो जितना डेटा मैंने आपके लिए डाला है, मैंने बहुत सारा डेटा कंपाइल करके इसको बहुत छोटा करने की कोशिश की है. आप इसको और मत कॉम्पैक्ट करिए, ठीक है. ये अगर आपने समझ लिया ना, समझ लो 25 नंबर में क्यों हम लोग इतना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्यों हम लोग इतना फोकस करेंगे, आप सारा गणित समझ जाएंगे, ठीक है. तो प्लीज अंडरस्टैंड. अब फंडामेंटली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब ऐसे देश जहां पे पर कैपिटा जीएनपी $2000 से कम है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमी का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1, द रिसोर्सेस. तो ऐसे कंट्रीज जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? 60% डिपेंड करती है रिसोर्सेस पे. ओके. फर्दर 35% डिपेंड करती है कंपटीशन पे और सिर्फ 5% डिपेंड करती है इनोवेशन में. मतलब कोई ऐसा देश जहां पर कैपिटा जीएनपी $2000 तक है या $2000 से कम है और उस तक है. जिनको जीएनपी नहीं समझते, देखो हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने बैठे हैं, नहीं. क्या मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूं? नहीं. एट दिस मोमेंट जीएनपी का मतलब है इकोनॉमिक वेलबींग किसी का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऐसा देश जहां $2000 तक का जीएनपी है, ऐसे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ 60% डिपेंड करता है उस देश के रिसोर्सेज पे, 35% डिपेंड करता है उस देश के कंपटीशन कितना है उस देश में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बचा हुआ सिर्फ 5% डिपेंड करता है इनोवेशन पे. जैसे हम थोड़ी बेहतर कंट्रीज की तरफ जाते हैं, जैसे हम लोग थोड़ी बेहतर इकोनॉमीज की तरफ जाते हैं, ये डायनेमिक्स बदल जाती है.
थोड़े बेहतर कंट्री में जाओगे, वहां ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वो रिसोर्सेज पे सिर्फ 40% डिपेंड करती है, कंपटीशन पे 50%, और इनोवेशन पे 10%। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो जैसे जैसे हम थोड़े बेहतर इकोनॉमी में गए, ये हमने तो मार्क कर ही लिया था पहले से, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी मार्क इट फॉर यू। जैसे हम लोग थोड़े बेहतर कंट्री में जाते हैं, तो क्या होता है, थोड़े बेहतर कंट्री में जाते हैं, वहां पे रिसोर्सेज पे इकोनॉमिक ग्रोथ का सिर्फ 40% वेटेज है। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो निर्भरता है, हमारी ग्रोथ की जो निर्भरता है रिसोर्सेज पे सिर्फ 40% डिपेंड करती है। 50% देश की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से बढ़ने वाली है, 10% इनोवेशन की वजह से। मतलब जैसे मैं थोड़े बेहतर देश में गया, वहां 60% इकोनॉमी ग्रो कर रहा है कंपटीशन और इनोवेशन की वजह से। सिर्फ 40% डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, वेल्थ के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर। जैसे मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की बात करता हूं, जैसे ही मैं सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की बात करता हूं, जैसे मैं स्विट्जरलैंड जैसे देशों की बात करता हूं, वहां पर द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 20%, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ 20% ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे रिसोर्सेज पे, उनके रिसोर्सेज पे। 50% ग्रोथ डिपेंड करती है कंपटीशन पे, 30% ग्रोथ डिपेंड करती है इनोवेशन पे। मतलब एक बड़ी इकोनॉमी की 80% ग्रोथ का जो फैक्टर है वो क्या है, कंपटीशन और इनोवेशन। अब मेरी बात सुन मेरे भाई, अब मेरी इकोनॉमी अगर $2000 के नीचे वाली इकोनॉमी है, मेरी अगर लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, और मेरी इकोनॉमी को मैं ये लेस डेवलप्ड इकोनॉमी से अगर मैं बेहतरीन इकोनॉमी में ले जाना चाहता हूँ, फंडामेंटली एक लेस डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर मैं बेहतरीन इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी कम लेस डेवलप्ड इकोनॉमी को मैं $17,000 के ऊपर की इकोनॉमी में लेके जाऊं, मेरे देश को अगर मेरे को वैसा डेवलप करना है, तो यहां पहुंचने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट ये जो रास्ता मेरा तय होगा, ये रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा बन गया, दोनों तीनों देखो, 50% ग्रोथ किस पे डिपेंड करने वाली है, कंपटीशन पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हर देश अपने देश में कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हर देश आज अपने देश में कंपटीशन लॉ, कंपटीशन पॉलिसी बनाता है। कंपटीशन पॉलिसी जो बनती है वो हिंदुस्तान में या किसी भी इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करने के लिए हम कंपटीशन को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। तो हर देश में एक होता है कंपटीशन पॉलिसी, जहां हम लोग कंपटीशन को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। दूसरा पहलू जो होता है, वो दूसरा पहलू होता है कंपटीशन लॉ का। कंपटीशन एक्ट बनाई जाती है या कानून बनाया जाता है। कानून इसलिए बनाया जाता है कि ऐसे लोग जो देश में प्रतिस्पर्धा कम कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन को हिंदुस्तान में किसी भी तरह से टेम्पर कर रहे हैं, किसी भी तरह से कंपटीशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधे सीधे मेरे देश की तरक्की के आड़े आ रहे हैं, और मेरे देश की तरक्की के बीच में जो भी आएगा उसके सर पे पैर रख के आगे जाना पड़ेगा। फंडामेंटली ये लेस डेवलप्ड इकोनॉमी से बेहतरीन इकोनॉमी बनने का जो रास्ता है, इस रास्ते में मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट पहिए हैं वो कौन से हैं, कंपटीशन और इनोवेशन। अब अगर मेरे ये दो टायर को कोई पंचर करेगा, तो हम थोड़ी ना फिर गुड बॉय हैं, या भारत सरकार थोड़ी ना फिर शांत बैठेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मारेगी डंडा। द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंग विद कंपटीशन लॉ इज ह्यूज, द पेनल्टीज विल फॉलो। दैट इज द रीजन द पेनल्टीज आर सो हाई। आप इमेजिन देखो यार, ये कोई मेरे और तुम्हारे निजी मामले की बात नहीं हो रही है, हम कोई प्राइवेट बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कोई अगर हिंदुस्तान में कंपटीशन कम करता है, अगर दो पार्टियां मिलकर कंपटीशन को कम करती है, तो नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, नुकसान पूरे देश का है। दैट इज द रीजन द कंपटीशन लॉ इज वेरी वेरी वेरी
ये इवॉल्व हो रहा है अभी भी हिंदुस्तान में, इसीलिए इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर कोई कंपटीशन लॉ का उल्लंघन करता है, पेनल्टीज भी बहुत ह्यूज है, पेनल्टीज भयंकर लगती है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, रिसोर्सेस, कंपटीशन, इनोवेशन। उसमें भी अगर मुझे छोटी इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी बनना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? कंपटीशन। सबसे ज़्यादा वेट कंपटीशन पे है। और इसीलिए मेरे भाइयों, अगर प्रतिस्पर्धा कम करने की कोई कोशिश करेगा, कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्राइज अगर हमारे देश में प्रतिस्पर्धा को कम करने की कोशिश करेगा, कोई भी कंपटीशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो भारत सरकार ने कानून बनाया है और इस कानून के तहत हमने ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया, हमने ऑनरेबल CCI कंपटीशन कमीशन को हमने स्टैब्लिश किया है, और कमीशन आपको नहीं छोड़ेगी। द पेनल्टीज विल फॉलो। इन फैक्ट, along with the penalties, along with the fines, other orders will also follow. They may also direct to close down the enterprise or the unit completely अगर वो हमारे कंपटीशन से खिलवाड़ कर रहे हैं तो। ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जो हिंदुस्तान में प्रतिस्पर्धा को कम करेगा, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मैं प्रीएम्बल का बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली द वेरी इंटेंट। ये पूरे कानून का वजूद क्यों है? ये पूरे कानून का वजूद इसलिए कि मेरे को मेरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना है, मेरे को मेरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और ऐसे सारे फैक्टर जो मेरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आएंगे कंपटीशन से रिलेटेड, उनको खत्म करना है। सिंपल एज दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है यार। लेट मी एंड द सेशन इन द लाइटर वेन, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। और जिन लोगों से आई हैव हर्ड द मेंबर्स ऑफ द बेंच, मैं तो जो ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनके मेंबर्स, आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट, आई हैव स्पेंड टाइम विद ऑनरेबल जो जस्टिस सिरपुरकर हैं। वो पहले तो कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल में वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, वो नागपुर के हैं। आई कुड स्पेंड टाइम 2-3 hours with him during the drive, and in one event Nagpur chapter has invited him as a chief guest. I am so fortunate, जो 4 छोटी छोटी बातें उनके साथ होती है, उनमें इतना इंसाइट मिलता है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है, मैं चिल्लाने लग जाता हूँ। मतलब कंटिन्यूसली मुझे मयांक बोल रहा है कि सर बहुत क्यों चिल्ला रहे हो, अब इतना चिल्ला के बार बार पीछे हो जा रहे हैं। बट एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इन अ लाइटर वेन, लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमारी क्लास में बॉलीवुड नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? कोई बात बताओ, बॉलीवुड में कोई भी पिक्चर देखो, जहाँ लव ट्रायंगल हो, अब जैसे दिल तो पागल है यार, अब 2 हीरोइन है, 1 हीरो है, तो किसका मजा होने वाला है? हीरो का, राइट? क्योंकि दोनों आपको, मतलब एट द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप खुद इमेजिन करो, आपकी क्लास है। अब उस क्लास में आपको एक बहुत ही कोई एक बंदी है, आपको बहुत क्यूट लग गई, आपको बहुत अच्छी लग गई। अब 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को एक बंदी बहुत क्यूट लग गई, बहुत ही उस पर दिल आ गया। मतलब वो लुक्स तो फालतू भाई, प्यारी हो गया। लुक्स तो बहुत टेम्पररी है, कोई हो गया, कोई किसी अदा में आप होगा फिदा। हाँ, नजर झुकी तो अदा बन गई, नजर उठी तो दुआ बन गई, जो नजरें फेर दी तो जजा बन गई। तो अच्छा, मैं और मेरा दोस्त हैं, हम दोनों को एक ही बंदी पसंद आ गई थी। अब जब एक ही बंदी पसंद आ गई है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैंने कहा देख यार, लेट्स कॉम्पीट, ऐसे फालतू में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ऐसे। हमने कहा भाई कंपटीशन होगा, जैसे जो फिर आखिरी में जीतेगा। तो अब जब बर्थडे आए, तो जिस दिन बर्थडे है उसके रात को 11:15 बजे हम उसको फ़ोन कर रहे हैं कि कम टू विंडो। हाँ, हीलियम बलून्स अपन 11:15 बजे खिड़की के नीचे से फिर रहे हैं कि दिस इज योर विश गोइंग टू द गॉड प्लीज। हाँ, जब 2 लड़के एक ही लड़की को पसंद करते हैं, तो हॉस्टल के बाहर जाके रात को 11:15 बजे आप 150 टाइप का स्पेशल चीज़ क्रिएट करोगे। अगले दिन अब अच्छा एक पूरा इवेंट क्रिएट करोगे, है ना? तो कंपटीशन का फिनोमिनन तो यहाँ भी है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is the phenomenon of competition. I can go to any extent, but let me not, ज़्यादा नहीं करता, अच्छा लगेगा। तो कंपटीशन का फिनोमिनन हर जगह है यार। मतलब so this is a phenomenon, okay? और अब जब ये बिजनेस में आ जाता है, और जब ये एफिशिएंसी में आ जाता है, और जब ये पूरे इंडिया के बारे में आ जाता है, तो फिर थिंग्स आर एट अ डिफरेंट लेवल। तो हम जब देश का बात करते हैं,
इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करते हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एनीवेज वेज, आई होप आपको कंपटीशन का फिनोमिनन थोड़ा थोड़ा समझा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट बेसिक्स अ लिटिल मोर। मैं चाहूँगा कि आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी तो मैंने कोई स्लाइड नहीं खोली है, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया। मैं चाहूँगा कि आपके बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाए, यहाँ से आप और बेहतर हो जाओ। फिर हम लोग लॉज में जाएंगे, फिर हमारे जो फोकस एरियाज हैं, फिर हम लोग सेक्शंस में चले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट टाइम। सो टिल देन एंजॉय करिए, सोचिए इसके बारे में, और आप किस दिशा में ज़्यादा बेहतर सोच सकते हो, मैंने आपको हल्की हल्की दिशा दे दी है। बाकी आई लीव इट टू यू। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट the basic stuff a little more, and eventually we'll get down to the business and we'll get down to the Bayer Act. हम सीधे कंपटीशन लॉ में सीधे कंपटीशन एक्ट 2002 को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, और शायद हम लोग सेक्शन भी शुरू कर दें। ओके, थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, सी यू सून, बाय बाय।